प्रेजेंस ऑफ अ म्यूकस कोट। और ये जो म्यूकस कोट है ये एक विरुलेंस प्रॉपर्टी देता है। विरुलेंस का मतलब है द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू अटैक द होस्ट इम्यून सिस्टम। Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? I hope you are doing really well. I am up with another interesting and intriguing video which deals with the topic the search for genetic material. Are you curious to know how the search for genetic material began and where did it ended? So we'll see in this video. Right? We know today that the genetic material in most organism is DNA, and in my last video also I asked why DNA is preferred as the genetic material, where some of you answered it correctly. So let me discuss, and if you haven't seen the video yet, go and watch it. DNA is most stable than RNA, and hence it is the most preferred genetic material. What is the reason for stability? The reason for stability is the presence of deoxyribose sugar instead of a ribose sugar. Deoxyribose lack a oxygen group at 2' OH, which is reactive, and hence deoxyribose is stable. The second reason is that it has presence of thymine as the nitrogenous base, one of the nitrogenous base, instead of uracil, which is more reactive and is present in RNA. Hence the genetic material preferably in most of the organism is DNA. But how is the quest of knowing what is the genetic material begin and where did it finally ended? All these curiosity will be solved in this video. So do watch it till the end. Let's begin how the search actually started. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर किया। उसके दो स्ट्रेन उन्होंने कल्चर किए, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, two strains he cultured. One is called the rough strain and the other is called the S strain. तो सबसे पहले हम बात करते हैं S strain of the bacteria Streptococcus pneumoniae. S strain को S क्यों कहा गया है? S यहाँ पे स्टैंड करता है बेटा फॉर स्मूथ, यानी ये वो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के जो स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। स्मूथ कॉलोनीज क्यों बनती हैं? तो S किसके लिए स्टैंड करता है? सबसे पहले आपने ये सीखा, स्मूथ अपीयरेंस, है ना। ये स्मूथ अपीयरेंस या कॉलोनी क्यों है? बिकॉज दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ म्यूकस कवरिंग और अ कोट, जिसकी वजह से वो स्मूथ अपीयर होते हैं। सो दे अपीयर स्मूथ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट, प्रेजेंस ऑफ अ म्यूकस कोट। और ये जो म्यूकस कोट है ये एक विरुलेंस प्रॉपर्टी देता है। विरुलेंस का मतलब है द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू अटैक द होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये म्यूकस कोट एक तरीके का पॉलीसैकेराइड ही है, पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स का कोट है, मीन्स अ टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स ओनली, जो उसको हेल्प करता है टू अटैक द होस्ट immune system, and therefore this strain can cause pneumonia, which is a kind of lung disease. Pneumonia एक तरीके का lung disease है जहाँ पर breathing में problem होती है, and these strain they affect the lung region, the alveolar region. So mucus coat provide virulence, the ability to attack host immune system. Very good. And since they are virulent, so they will cause which disease? Pneumonia. Correct. ये प्रॉपर्टी है S strain की। They have smooth appearance. Smooth appearance किसकी वजह से है? Because of the presence of
म्यूकस कोट, और म्यूकस कोट क्या देता है? विरुलेंस प्रॉपर्टी देता है। विरुलेंस प्रॉपर्टी है तो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेन है आर स्ट्रेन। सेकेंड स्ट्रेन क्या है हमारा? आर स्ट्रेन। आर स्टैंड्स फॉर रफ। तो आपको बात समझ यहीं से ही आ गई होगी कि इनका रफ अपीयरेंस है ना, दे अपीयर रफ। अब रफ अपीयरेंस क्यों होगा? क्योंकि इसमें म्यूकस कोट नहीं होगा मैम, लॉजिकल बात है। सो म्यूकस कोट नहीं है इसलिए ये रफ दिखते हैं, और म्यूकस कोट नहीं है तो ये नॉन विरुलेंट होंगे, क्योंकि म्यूकस कोट ही तो विरुलेंस प्रॉपर्टी देता है, वो है ही नहीं, और नॉन विरुलेंट है। तो अगर ये स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया तो नो डेथ, नो निमोनिया, करेक्ट। सो दे हैव रफ अपीयरेंस, एब्सेंस ऑफ म्यूकस कोट। जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, अब तो आपको पता ही है। नॉन विरुलेंट स्ट्रेन डज नॉट कॉज निमोनिया। है ना, निमोनिया नहीं करता है ये, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेन के बारे में समझ आया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में इनको कल्चर किया और उसके 2 स्ट्रेन बनाए। उसके बाद इन स्ट्रेन्स को माइस में इंजेक्ट किया। कैसे इंजेक्ट किया? सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन लिया और उसको माइस में इंजेक्ट किया। एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? एस स्ट्रेन तो विरुलेंट स्ट्रेन है, विरुलेंट स्ट्रेन है तो निमोनिया हुआ और निमोनिया से माइस की डेथ हो गई। फिर जब उसने उस माइस में आर स्ट्रेन डाला तो आर स्ट्रेन तो नॉन विरुलेंट था, ये तो नॉन विरुलेंट है, ये विरुलेंस हुआ और ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था, इसलिए माइस की डेथ हुई ही नहीं, है ना। तो माइस सरवाइव हो गई, एक्सपेक्टेड भी है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दूं तो क्या माइस लाइव रहेगी या इट विल डाई? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए मेरे बताने से पहले। एस स्ट्रेन इंजेक्ट करने पर निमोनिया हुआ और माइस की डेथ हो गई विरुलेंस की वजह से, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट था, माइस में इंजेक्ट किया तो वो सरवाइव कर गई। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको हीट किल कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको हीट किल दूंगी तो हीट किल करने पर बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जब बैक्टीरिया मर गया है तो इंजेक्शन देने पर भी नथिंग विल हैपन बिकॉज दी बैक्टीरिया आर डेड, है ना। तो वो क्या होगी? माइस सरवाइव कर जाएगी। देखो खुश है, निमोनिया ही नहीं हुआ, अच्छा हुआ ना। और अब मुझे आप बताइए, अगर मैं हीट किल्ड एस के साथ आर स्ट्रेन डाल देती, आर जो है वो नॉन विरुलेंट है, हीट किल्ड वाला वैसे ही मर चुका है तो नॉन विरुलेंट ही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि माइस विल सरवाइव। ग्रिफिथ ने भी यही एक्सपेक्ट किया था, बट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर होता नहीं है ना। तो यहाँ पे भी हुआ नहीं। जब ऐसा उसने मिक्सचर डाला, ही फाउंड कि माइस सरवाइव होने की बजाय मर गई निमोनिया से। तो ऐसा क्यों हुआ? दैट क्यूरोसिटी in him led to a first step towards the discovery. He analyzed, he repeated the experiment, studied and finally came to the conclusion कि जब माइस में heat killed S और R डाले गए तो heat killed S strain वाले बैक्टीरिया जब मर गया तो उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया। वो जेनेटिक मटेरियल R strain बैक्टीरिया ने उठा लिया। आपको अगर पता हो बेटा तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, दे शो बेसिकली अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया क्या शो करते हैं? अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
प्रिमिटिव मीन्स पुराने टाइप का, और यहाँ पे पुराना क्या है कि सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन और गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इन बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जहां कोई बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट से किसी कंपैटिबल स्ट्रेन के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यही हुआ जब ग्रिफिथ ने हीट किल्ड के साथ क्या डाला, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स हुआ तो एस स्ट्रेन का डीएनए किसने उठा लिया, आर स्ट्रेन ने। अब वो डीएनए था कि नहीं यही तो देखना था, बट उसने उठाया और अपने अंदर ले लिया। अब उस स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन में वो जीन्स एक्सप्रेस होने लग गई और आर स्ट्रेन म्यूकस कोट बनाने लग गया। जब आर स्ट्रेन ने म्यूकस कोट बनाया तो वो विरुलेंट हो गया, और विरुलेंट होने की वजह से माइस में निमोनिया हुआ और डेथ हो गई। सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसका हुआ, आर स्ट्रेन का इनटू विरुलेंट एस स्ट्रेन, है ना, वो विरुलेंट हो गया बिकॉज ऑफ द taking up of the DNA of S strain from the environment. They started producing mucus coat प्रोड्यूस करने लग गए, और म्यूकस कोट प्रोड्यूस किया तो फिर से क्या हो गए, वो विरुलेंट, है ना। आर स्ट्रेन विरुलेंट हुआ और हमारी माइस मर गई निमोनिया के चलते। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ये तो नहीं बता पाए कि ये क्या था, आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन से क्या उठाया, इज इट अ डीएनए, इट्स एन आरएनए, इट्स अ प्रोटीन, क्या है ये तो नहीं बता पाए, बट ही एक्सप्लेन कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म जरूर हुआ एस स्ट्रेन से, और एस स्ट्रेन से जिस वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ वो कोई जेनेटिक मटेरियल ही है, उसमें इंफॉर्मेशन थी म्यूकस कोट बनाने की, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो विरुलेंट प्रॉपर्टी शो करने लग गया। ही कॉल्ड दिस material which is absorbed from the S strain by the heat killed S strain by the R strain as transforming principle. But वो क्या है, it's a protein, it's a RNA, it's a DNA, वो ये नहीं बता पाए थे। तो अब इसके आगे की कहानी कंटिन्यू हुई बाय 3 अदर साइंटिस्ट, जिन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और कंटिन्यू किया for the biochemical characterization of this transforming principle, कि ये transforming principle जो ग्रिफिथ बोल के गए हैं ये बायोकेमिकली है क्या, है ना। तो एक्सपेरिमेंट कैसे कंटिन्यू हुआ देखते हैं। सो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो 1933 से 34 के स्पैन में हुआ बाय 3 साइंटिस्ट, ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लूड एंड मैकलिन मैककार्टी। इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सट्रैक्ट करके उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। यानी इन तीनों ने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया, हीट इज यूज टू किल द एस स्ट्रेन ऑफ द निमोनिया और उसके कैप्सूल कंपोनेंट्स को रिमूव किया सॉल्यूशन से। फिर उन्होंने 3 सेटअप लगाए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक कंट्रोल। किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल में जो मेन चीज़ होती है वो मिसिंग होती है टू बेसिकली वेरीफाई योर रिजल्ट्स, है ना। तो उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जब कैरेक्टराइजेशन किया, टेस्ट ट्यूब में रखा, तो एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ऐड की प्रोटीएज यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड किया राइबोन्यूक्लियस यानी आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, और एक टेस्ट ट्यूब में ऐड किया डीएनएस यानी डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम।
ठीक है, deoxyribonucleases which is going to degrade the DNA। और अगर देखो प्रोटीन, इसमें कोई एंजाइम नहीं डाली so as to verify कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है उस रिजल्ट्स में। इस वाले एक्सट्रैक्ट को जब आप माइस में डालोगे तो क्या होगा, आर स्ट्रेन या एस स्ट्रेन को मिक्स करोगे तो माइस में तो चलो बाद में डालेंगे, पहले आर स्ट्रेन को इसके साथ रखोगे तो आर स्ट्रेन विल बी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोटीएज में जब किया प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन था, यानी जो आर स्ट्रेन ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से उठाया था, इफ इट वाज प्रोटीन विच वाज गिविंग इट द इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज दैट म्यूकस कोट, तो वो तो यहाँ डाइजेस्ट हो गया। अब इसको जब मिक्सिंग करेंगे आर के साथ और फिर माइस में इंजेक्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और माइस सरवाइव कर जानी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन ही मटेरियल है, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, तो फिर वो तो डिस्ट्रॉय ही हो गया ना प्रोटीएज से। अब वो कोट नहीं बना पाएगा और माइस इन्फेक्ट नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हुआ। प्रोटीएज डालने के बाद जब आर स्ट्रेन और इसको मिक्स किया गया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी आर स्ट्रेन अभी भी ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड, और माइस में इंजेक्ट करने के बाद डेथ हो गई, है ना, निमोनिया की वजह से। इसका मतलब कि प्रोटीन तो नहीं था, करेक्ट। फिर जिस टेस्ट ट्यूब में हमने आरएनएस डाली, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसके बाद जब उसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया और फिर माइस में इंजेक्ट किया गया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब आरएनएस डालने के बाद, आरएनए डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अगर एक्सपेरिमेंट सेम वैसा ही चल रहा है, माइस की डेथ ही हो रही है, इसका मतलब आरएनए के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी म्यूकस कोट की। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गए, माइस की डेथ हो गई। लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब के केस में जहाँ डीएनएस डाला गया, डीएनएस डिस्ट्रॉय द डीएनए, तब जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुए, नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि डीएनएस डालने के बाद क्या हुआ, उस हीट किल्ड वाले पैटर्न में जब डीएनएस डाला तो डीएनए तो डिस्ट्रॉय ही हो गया। अब उसमें आर स्ट्रेन मिक्स भी कर दिया तो इट कुड नॉट पिक अप एनीथिंग। जब कुछ उसने उठाया ही नहीं, नो इन्फॉर्मेशन फॉर द म्यूकस कोट, आर स्ट्रेन वॉज नॉन विरुलेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ और माइस सरवाइव हो गई। इसका मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात ग्रिफिथ कर रहे थे वो एक्चुअली में क्या था, डीएनए। तो यहाँ से आइडिया तो मिल ही गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जैसे बैक्टीरिया के डीएनए में एस स्ट्रेन के इंफॉर्मेशन थी कि म्यूकस कोट बनेगा और म्यूकस कोट उसको एक विरुलेंस प्रॉपर्टी देगा, आर स्ट्रेन के उसमें नहीं थी। बट जब एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में जाता है तो इट इज एबल टू सिंथेसाइज दैट, करेक्ट। पर ये कंटिन्यूएशन था किसका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स का। अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह रह गए तो फिर एक्सपेरिमेंट आया ऑफ टू साइंटिस्ट, हर्शे एंड चेस। दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इट गेव एन अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अनइक्विवोकल मतलब जिसमें कोई डाउट ही नहीं है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। सो मार्था और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया 1952 में प्रूफ करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या आखिर। एंड इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज सच अ बिग हिट, इट वाज सो सक्सेसफुल विद नो डाउट्स। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। देखें इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ ऐसा। एक्साइटेड? सो मार्था और चेज ने काम किया बैक्टीरियोफाज पे। दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप लोगों को 11th याद भी है या नहीं। फाज इज अ टर्म यूज्ड फॉर
वायरसेस। वेरी गुड, जिनने आंसर किया है वेरी गुड, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। सो फाज इज अ वायरस एंड बैक्टीरियोफाज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरसेस दैट infects bacteria are called bacteriophage, right? So he worked on a bacteriophage जो इन्फेक्ट करता है E. coli बैक्टीरिया को। इन दोनों ने उस पर ही काम किया। अब बैक्टीरियोफाज या वायरस क्या होते हैं बताइए? वायरसेस आर, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको तो प्रॉपर आना चाहिए, फटाफट लिखिए वायरसेस होते क्या हैं। कोई पूछेगा तो कैसे बताओगे कि वायरसेस क्या होते हैं? करेक्ट करेक्ट, वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। वायरसेस बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल का मतलब क्या है? जैसा नाम है वैसा ही आपको समझ में आना चाहिए, कुछ रटेंगे नहीं। न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लिक एसिड से, सो दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन कोट, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी, पर मेजॉरिटी में डीएनए है। ये इनका एक्सपेरिमेंट अभी बता देगा हमें, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 टाइप के हैं, जिसमें से कुछ अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है, जैसे कि मिथ्योनिन, सिस्टीन, है ना। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन है? सल्फर कंटेनिंग क्यों बताया स्पेशली, अभी समझाती हूँ। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। और न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? शुगर लिंक टू बेस, लिंक टू फॉस्फेट ग्रुप, करेक्ट। इसमें मेरे लिए या मार्था चेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एक फॉस्फेट जो कि डीएनए या आरएनए में मिल सकता है, और अमाइनो एसिड में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। मार्था और चेज ने क्या किया? वायरस को क्रिस्टलाइज किया। हम क्रिस्टल्स कर सकते हैं वायरसेस को लैब में, ये तो आपको पता ही है। तो उन्होंने क्रिस्टल्स बनाए वायरस के, बैक्टीरियोफाज के। 2 कल्चर्स लगाए। एक कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर रखा, सल्फर वॉज रेडियो एक्टिव इन 1 कल्चर। इसको ऐसे माइंड में बनाते हैं। फर्स्ट कल्चर में जहां वायरस को ग्रो किया, सल्फर वॉज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी को मैं स्टार से दिखा रही हूं, रेडियो एक्टिव सल्फर। अगर सल्फर रेडियो एक्टिव है तो ऐसे वायरसेस में क्या रेडियो एक्टिव होगा? प्रोटीन कोट या न्यूक्लिक एसिड? सल्फर अमाइनो एसिड में होता है और अमाइनो एसिड प्रोटीन कोट में। सो द प्रोटीन कोट इज रेडियो एक्टिव। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। और जो उन्होंने सेकेंड कल्चर लगाया ना, उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिविटी किस में रखी? फॉस्फोरस में। सेकेंड कल्चर जो था वायरस का, उसमें कौन रेडियो एक्टिव था? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव होने की वजह से क्या होगा?
डीएनए ऐसे वायरस का क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। सिंपल बात है, क्योंकि फॉस्फोरस किस में होता है बेटा, डीएनए में। तो यहाँ पर डीएनए क्या हो गया वायरस का, रेडियो एक्टिव। तो दो टाइप के वायरसेस क्रिस्टलाइज किए गए हैं, एक जिनका प्रोटीन कोड ये वाला, ये प्रोटीन कोड क्या है, रेडियो एक्टिव। सो इसमें सल्फर रेडियो एक्टिव है, और दूसरे टाइप के वायरसेस में डीएनए रेडियो एक्टिव है ना, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस होता है। फिर इनको यूज किया गया टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज है तो बैक्टीरिया कोई करेगा, बैक्टीरिया ई कोलाई। तो कैसे सेटअप एक्सपेरिमेंट का किया मार्था और चेज ने 1952 में, सबसे पहले उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया दो कल्चर्स में, एक जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था और एक जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। रेडियो एक्टिव सल्फर विल बी टेकन अप इन दी अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन का पार्ट होते हैं, तो इनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो गया। जबकि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव जिसमें था, उस केस में डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ, क्योंकि डीएनए में ही फॉस्फोरस होता है न्यूक्लियोटाइड्स में। इतना समझ में आया, जल्दी से माइंड मैप बनाइए फटाफट। डन। चलिए अब देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस वाले वायरसेस का। तो देखो ये कल्चर प्लेट्स जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया गया है और वायरसेस को ग्रो किया। अब इनको इन्फेक्ट करने दिया टू दी ई कोलाई। नाउ द वायरसेस with radioactive sulfur and radioactive phosphorus. With radioactive sulfur किस में होगा, प्रोटीन कोड किसको इन्फेक्ट किया, ई कोलाई, क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज जो लिया गया है वो एक्चुअली में T4 बैक्टीरियोफाज है जो ई कोलाई को इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरे वायरसेस थे विद रेडियो एक्टिव डीएनए, विद रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि T4 में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसने इन्फेक्ट किया किसको, ई कोलाई को अगेन। अब हमें क्या देखना है कि दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में ई कोलाई भी क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव, और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इस वाले सेटअप में क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। तो अगर इस केस में रिजल्ट क्या आता बेटा, अगर इस केस में इफ E. coli shows radioactivity इन्फेक्शन के बाद, after infection, then protein is genetic material। ठीक है, if no radioactivity in the E. coli की इन्फेक्शन करने के बाद भी E. coli रेडियो एक्टिव नहीं हुए तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं था। सो प्रोटीन
नॉट अ जेनेटिक मटीरियल। दो केस हैं, एक अगर रेडियो एक्टिविटी ऊपर वाले सेटअप में आई ई कोलाई में तो वो है, नहीं आई तो नहीं है। सेम गोज है, अगर रेडियो एक्टिविटी दिखी ई कोलाई में तो डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। इफ ई कोलाई शोज रेडियो एक्टिविटी इन दिस केस तो डीएनए क्या हो गया बेटा? जेनेटिक मटीरियल, उसे ही तो प्रूफ कर रहे हो। और इफ नो रेडियो एक्टिविटी अगर रेडियो एक्टिविटी हुई डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल, और हमें पता है यही होगा, है ना, हमें तो पता है वही डीएनए ही है। डीएनए अगर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई तो वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है। यही एक्सपेरिमेंट किया मार्था और चेज ने। वायरस बैक्टीरियोफाज लिया, उसको कल्चर किया रेडियो एक्टिव सल्फर, और एक कल्चर किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। सल्फर अमाइनो एसिड्स में हो सकते हैं और अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उसमें वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है, उसको फिर ई कोलाई से इन्फेक्ट करवा दिया। अगर कुछ टाइम बाद मैं ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी देखूंगी तो हम क्या कहेंगे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटीरियल था जो ट्रांसफर हुआ, और अगर नहीं आई तो प्रोटीन नहीं है। इसी तरीके से रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो होने वाले वायरसेस के पास क्या होगा? डीएनए एज दी रेडियो एक्टिव मटीरियल, क्योंकि फॉस्फोरस इज इन डीएनए। और अब इसको जब इन्फेक्ट करा रहे ई कोलाई से, रेडियो एक्टिविटी आई अगर ई कोलाई में तो डीएनए है जेनेटिक मटीरियल, वो ट्रांसफर हुआ था वायरस के थ्रू, और अगर नहीं आई तो नहीं था। पर अब ये इन्फेक्शन करना और रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करना, ये मार्था और चेज ने कैसे किया? पर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कैसे होगा? गुड, रियली गुड स्टूडेंट्स। तो देखो, जो ये आपकी बुक में भी दिया है ना, सबसे पहला स्टेज यहाँ पे भी प्रॉपरली समझ लो, क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। आई नो दिस वेरी वेल। जो मैंने आपको माइंड मैप अभी दिया बिल्कुल वही है बेटा। सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, यहाँ पर जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव है, यानी ये वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किए गए थे। और यहाँ पर फॉस्फोरस लेबल डीएनए, फॉस्फोरस जो है वो रेडियो एक्टिव था, तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। एक टेस्ट ट्यूब में वायरस और बैक्टीरिया को डाल दिया है, नाउ इट इन्फेक्ट्स। इन्फेक्ट कैसे करता है? वायरसेस अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी टेल पिन से वो अटैच करेगा, अटैचमेंट के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करेगा। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन जाएगा, डीएनए है तो डीएनए जाएगा। इन्फेक्शन हो गया। अगर मैं इस समय रेडियो एक्टिविटी चेक करूं तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी मुझे मिलेगी ना, वायरस और ई कोलाई डाला है, क्योंकि वायरस तो अंदर ही है तो रेडियो एक्टिविटी टेस्ट ट्यूब में दिखेगी, बट वो किस में दिख रही है, ई कोलाई या वायरस में? ये जानने के लिए मुझे पहले दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो पहले अटैचमेंट हुआ, लेट इट इन्फेक्ट, उसके बाद पहले दोनों के बीच का अटैचमेंट तोड़ना है। तो वो कैसे टूटेगा? ब्लेंडिंग से। ब्लेंडिंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग द अटैचमेंट एंड देन अटैचमेंट टूट गया, बट अभी भी ये उसी टेस्ट ट्यूब में है, तो रेडियो एक्टिविटी तो अभी भी टेस्ट ट्यूब में दिखेगी, बट वो ई कोलाई की है या वायरस की, उसके लिए वायरस को अलग करना पड़ेगा और बैक्टीरिया को बिल्कुल अलग, कि मुझे डिस्टिंक्शन दिखे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन। वो क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहला स्टेप इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स इन्फेक्शन के केस में देखो, बैक्टीरियोफाज आएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल देगा। सो इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स अटैचिंग ऑफ वायरस टू द बैक्टीरिया। टू द बैक्टीरिया एंड इंजेक्टिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल। यही होता है ना इन्फेक्शन का मतलब,
कि अपनी टेल पिन से अटैच हो जाओ पहले और फिर उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दो, क्योंकि वायरसेस फिर होस्ट सेल की मशीनरी को ओवरटेक कर सकता है। तो इन्फेक्शन स्टेप समझ में आया? ये देखो, ये अटैच हुए और अपना जेनेटिक मटेरियल अब अंदर भेज रहे हैं। क्लियर? ये तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, आप देख थोड़ी सकते हो कैसे हो रहा है, तो वो उसके लिए एंड तक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर इनको अलग करेंगे, तो ये अलग करने के लिए क्या स्टेप होगा? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग विल हेल्प इन, सेकेंड स्टेप इज blending, and blending is done to break attachment between bacteria and the virus, to break attachment between bacteria and virus. करेक्ट? अटैचमेंट तो बेटा ब्रेक हो गया, देखो है ना, ब्लेंडर्स होते हैं छोटे छोटे उससे, बट अभी भी दोनों ही बैक्टीरिया भी और बैक्टीरियोफाज भी, वो दोनों कहाँ हैं? एक ही टेस्ट ट्यूब में है ना। ये मैंने बना दिया आपका बैक्टीरियोफाज, और नीचे बना देते हैं, चलो ग्रीन से, ई कोलाई। ठीक है तो लेकिन एक ही टेस्ट ट्यूब में, तो अभी भी इनको अलग करना है। एक टेक्निक होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन देखो लास्ट स्टेप है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक which help in separating the components of a mixture on the basis of density। जब हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किसी और फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिकैंटेशन, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं, जो किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। So the third step is centrifugation. Help in separating components of mixtures, और यहाँ पर कौन है? वायरस एंड ई कोलाई। तो मैं उसी के रिस्पेक्ट में आपको बताऊंगी। On the basis of their density gradient, है ना, डिफरेंस इन डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेशन होगा। क्लियर हुआ? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? रट के नहीं जाना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए हर चीज का मीनिंग, तब आपको समझ में आना चाहिए आएगा कि क्यों ये स्टेप करना पड़ रहा है। क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद भी वो एक ही टेस्ट ट्यूब में है। अगर रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करोगे पूरी जगह दिखेगी, आप कैसे पहचानोगे कि ई कोलाई में दिख रही है या वायरस की वजह से? तो मुझे उनको डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन। जब ऐसा होगा तो टेस्ट ट्यूब में व्हाटएवर सेटल्स डाउन इज कॉल्ड द पेलेट बिकॉज इट इज हैवी। टेस्ट ट्यूब में जो नीचे सेटल होता है उसे क्या कहेंगे? पेलेट। यहाँ पर बैक्टीरिया बना रही हूँ मैं ग्रीन से, और ई कोलाई नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है? whatever settles down in the test tube after centrifugation is called the pellet, and this will have E. coli because they are heavier. ठीक है? और जो ऊपर रह जाता है बेटा, वो उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए इट स्टेज ऑन द टॉप, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। और यहाँ पर सुपरनेटेंट में कौन है? वायरस के पार्टिकल। ठीक है? सुपरनेटेंट्स में कौन है? वायरस पार्टिकल्स, बिकॉज दे आर लाइटर इन डेंसिटी। ठीक है? अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसमें सल्फर वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर
प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ आनी चाहिए? ऊपर, क्योंकि हाँ ऊपर आनी चाहिए, करेक्ट। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इस केस में हमको जब रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करनी है तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखनी चाहिए? पेलेट में नीचे जहाँ पर बैक्टीरिया थे। पर पेलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखेगी या नहीं वो देखना है। और जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जहाँ फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, अगर उसके पेलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखी तो इट मीन्स दैट वॉज द केस, या वो जेनेटिक मटेरियल है। अपने डायग्राम में प्रॉपरली देखिए, वहाँ पर लिखा भी है सल्फर वाले सेटअप में, सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर सेटअप जो था उस केस में रेडियो एक्टिविटी वॉज सीन इन सुपरनेटेंट। रेडियो एक्टिविटी कहाँ आई? प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट, और पेलेट में नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी इन पेलेट। पेलेट में कौन थे? इकोलाई, यानी प्रोटीन पहुंचा ही नहीं इकोलाई में। और पहुंचा नहीं मतलब इकोलाई प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है। पेलेट में कौन थे? इकोलाई, जहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पहुंची। जबकि यहाँ जहाँ पर सुपरनेटेंट में वायरस के ही पार्टिकल्स थे वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था एंड दैट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इसलिए ऐसा हुआ। इन केस ऑफ सेटअप जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, वहां पर रेडियो एक्टिविटी मिली पेलेट में, मतलब इकोलाई, क्योंकि पेलेट में कौन था बेटा? इकोलाई, करेक्ट। तो इसका मतलब इकोलाई तक फॉस्फोरस पहुंच ही गया, किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट कहाँ? इन पेलेट, मतलब जो नीचे सेटल था, और नीचे कौन था? ई कोलाई। रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट इन सुपरनेटेंट, क्योंकि सुपरनेटेंट में वायरस पार्टिकल थे और उस केस में वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव नहीं था, सिर्फ डीएनए था, वो उसने इकोलाई को दे दिया है, समझ आ गया, तभी इकोलाई रेडियो एक्टिव हो गए। जिसमें वायरस थे। करेक्ट। इसलिए पता लगा फाइनली कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पेलेट रीजन में जहां ई कोलाई होने चाहिए वहां पर सेकेंड सेटअप में आए जहां फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था, ना कि ना सुपरनेटेंट। उनका प्रोटीन कोट नॉर्मल था तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखी नहीं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, वो उसने दे दिया ई कोलाई को, तो ई कोलाई तो रेडियो एक्टिव मटेरियल में कभी ग्रो ही नहीं हुए, फिर वो क्यों शो कर रहा है रेडियो एक्टिविटी? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल इंजेक्ट किया गया जेनेटिक मटेरियल वो क्या था? डीएनए। So this sums up your Hershey and Chase experiment, which started with the growing of two virus culture, one in radioactive sulfur, one in radioactive phosphorus, जिसमें सल्फर रेडियो एक्टिव, उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव, उसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव, और प्रोटीन रेडियो एक्टिव जब होगा और इन्फेक्ट करेंगे ई कोलाई को तो फिर रेडियो एक्टिविटी ई कोलाई में जानी चाहिए, यानी पेलेट रीजन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। बट पेलेट रीजन में कोई रेडियो एक्टिविटी देखी ही नहीं गई इस टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट प्रोटीन, द रेडियो एक्टिविटी वाज स्टिल सीन इन द सुपरनेटेंट पार्ट जहाँ पर वायरस बैठे थे विद देयर प्रोटीन कोट। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है ई कोलाई विद रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस यानी डीएनए। रेडियो एक्टिविटी अगर ई कोलाई में पेलेट रीजन में शो हुई, इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और वही हुआ।
ई कोलाई रेडियो एक्टिव होने लग गए जो पेलेट में थे, और सुपरनेटेंट नो रेडियो एक्टिविटी, जहाँ पर सिर्फ अब क्या बच गया वायरस का, प्रोटीन कोड, डीएनए उन्होंने दे दिया. सो दैट प्रूव्ड without any doubt that DNA is the genetic material. So Hershey and Chase, Martha Chase, they gave unequivocal proof for the DNA as genetic material, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है. और हमारा जो क्यूरोसिटी था कि जेनेटिक मटेरियल आखिर है कौन, वो यहाँ सॉल्व हो गया. दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सभी फीचर्स, सभी बॉडी के एक्सटर्नल, इंटरनल, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज इन जेनेटिक मटेरियल, जिसे यूकैरियोट्स में बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर हुआ? सो आई होप आपको एंड तक मज़ा आया और आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आए, स्पेसिफिकली द मार्था एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सुपरनेटेंट पेलेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. एंड अगर आपको ये समझ में आया है तो डू गिव अ थम्स अप, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. For more interesting updates, stay tuned, and I'll be up soon with a very interesting video with a very interesting topic. So stay tuned, stay happy, all the best.